mutual funds, stock markets, markets going high, markets going down, foreign institutional investors, and so on and so forth. These terminologies we have been hearing quite often through different media channels, through social media platforms, through YouTube channels, and so on and so forth. Today, in our special and exclusive talk show, we have a very important guest with us. He had been a veteran in this mutual fund industry for the last 17 years. And mind you, he had been into the product team. He had been designing and making people understand what mutual funds are and what mutual funds can do in a longer period of time when it comes to wealth management. So introducing today Mr. Manoj Jain, who has been heading the product team of White-Oak Capitals today. He had been there in this industry for the last 17 years, and he had also been working with one of the premium brands like ICICI till now. So looking forward and hearing lot of expert ideas and answers from the veteran. So today I would want all the viewers, whoever is seeing our show, to look into the matter and see how does an expert who had given his entire career into the mutual fund industry would be answering to few of our questions, which in somehow or the other has been coming forward to me by the different viewers. So welcome to our show, Manoj. Thank you so much, Siddharth, for inviting me. It's indeed a pleasure that after chasing you for so long, we have been able to grab you today and make a substantial impact over the investors' ideology and the thought process. Well, thank you so much for inviting me, and hopefully we will have some meaningful conversation with our investors. Thank you so much. So viewers, few questions which have come to me in different forms through social media platforms, through calls, through chats. So today I will be posing those questions in front of Manoj, and let's see how does Manoj answer those questions. And mind you, whatever he says, it is out of his sheer experience which he'll be speaking in front of us. So Manoj, first question which I have always been asking to so many experts who have been on our show. आज इंडियन मार्केट्स इतना अट्रैक्टिव हो गया, आपको भी पता है ये बात. डिफरेंट लोग, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर्स हों, वो आते हैं और वो डिफरेंट फॉर्म में आज इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. चाहे वो स्टॉक्स के थ्रू हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो, चाहे वो ट्रेडिंग के थ्रू हो. आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? I think India, if you look at India and compare it with other emerging market, or let's say any large economy in the world, India is one of the fastest growing large economy. और अगर आप थोड़ा लॉन्ग पीरियड डेटा देखोगे, इंडिया के कंटेक्स्ट में देखोगे, ओवर द लास्ट ऑलमोस्ट 30 years हमारे देश की जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, विच इज़ वी नो रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, तो 12.5% के रेट से एनुअलाइज बढ़ी है. इसी पीरियड में जो हमारे देश की बड़ी कंपनियां हैं, जिनको सेंसेक्स के फॉर्म में कहते हैं, 30 बड़ी कंपनियों को सेंसेक्स बना देते हैं, ये 30 कंपनियों की लास्ट 30 years की जो अर्निंग है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो भी करीब 12.5% एनुअलाइज रेट से बढ़ी है. और अगर आपने इन्हीं 30 कंपनीज में सेंसेक्स के फॉर्म में डाल दिया होता पैसा, सेंसेक्स एक अच्छा बैरोमीटर है इक्विटी मार्केट के लिए, तो आपका जो रिटर्न बना है इन्वेस्टर्स का, वो भी करीब 12% प्लस 1.5% की डिविडेंड यील्ड 13.5% एनुअलाइज बना. तो देखिए, इस तरह का रिटर्न इक्विटी दे सकती है और एक ऐसा देश, इंडिया जैसा देश दे सकता है. आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करी, रिटेल इन्वेस्टर्स हम जानते हैं उन्होंने बहुत पैसा बनाया. और ये हम सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम उठा के देखेंगे जो 15, 20, 30 साल पुरानी है, तो वहाँ पे रिटर्न और भी ज़्यादा है ना, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी स्कीम की बात कर रहे हैं. फॉरेन पर्सपेक्टिव से, फॉरेन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से भी देखिएगा, इंडिया इज़ वन ऑफ दोज फ्यू कंट्री जहाँ पे फॉरेनर्स पैसा इन्वेस्ट करके जब बाहर निकालते हैं डॉलर में, तो उनका पैसा बनता है. जस्ट टू गिव इन कंटेक्स्ट, जितनी भी एमर्जिंग मार्केट्स है बड़ी, आप 10 एमर्जिंग मार्केट उठा लीजिए बड़ी, इंडिया इज़ वन ऑफ देम. और पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल के रिटर्न को सॉर्टिंग कर दीजिए, इंडिया इज़ वन ऑफ दी हाईएस्ट रिटर्न जनरेटर इन डॉलर टर्म ऑल्सो. सो नॉट ओनली इन रुपी टर्म फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, but in dollar term for foreigners also, India is one of the best country, and I strongly believe over the next 2 to 3 decades, India can grow faster than world averages clearly. And बहुत से ऐसे ट्रेंड इमर्ज हो रहे हैं जो बताते हैं कि ये जो अगला 2 से 3 दशक है, वो इंडिया को फेवरेबल रहेगा. वाह, इनफैक्ट ये पॉइंट मैंने सोचा भी नहीं था, बट येस, डिफरेंट ऑडियंस एंड डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैव बीन आस्किंग मी कि हम इंडिया में इन्वेस्ट तो कर दें, बट बिकॉज एक रुपी डॉलर जो एक डेप्रिसिएशन होता है, रुपी हर बार डेप्रिशिएट होता है और
डॉलर हर बार अप्रिशिएट होता है, उसके अगर हम उस फैक्टर को भी कंसिडर कर लें, सो विल वी बी एबल टू मेक रिटर्न्स? एंड हाउ ब्यूटिफुली मनोज हैज आंसर्ड दैट क्वेश्चन, दैट अगर हम पास्ट स्टैटिस्टिक्स और डेटा को अगर हम साथ लेके चलें, तो रुपी डॉलर टर्म्स में भी हमारे जो रिटर्न्स हैं, they have been one of the best within the emerging market space. And I think all the investors are chasing for returns, whether it is domestic investors or whether it is foreign investors. People really want कि किसी भी तरीके से उनका पैसा बने, चाहे वो डेवलपिंग जोन में जाएं, चाहे वो डेवलप्ड जोन में पैसा लगाएं, चाहे वो चाइना जैसी इकोनॉमी में ही क्यों ना पैसा लगाए. So how beautifully he has answered. So taking you to a very uncomfortable question, and I want this question is coming from, this answer will be coming from an expert. Therefore, I want all the audience and viewers to listen to it carefully and to listen to it with utmost patience as well. So, since October 1st till I suppose today we are sitting on 17th or 18th of November, Indian markets have been quite volatile. And this volatility is accompanied with lot of anxiety, stress and tension into the mind of investors. हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, पैसा बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, इंडियन मार्केट्स बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, जो फंड्स लगाए हैं वो सेफ हैं या नहीं है, या ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कोविड के बाद के इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए ये मार्केट्स इस तरीके से बिहेव कर रहे थे. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी contextual seeing the present market scenario. So Manoj, with your experience of 17 years and with your knowledge, you are an expert, you are into product designing. How do you see, or what kind of advice would you want to give to the investors who are watching this show, so that people should know how does the product designers, the product creators think about this? Sure, Siddharth. तो देखिए सिद्धार्थ, ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है. जैसे आज की डेट में वन ऑफ द रीज़न market is so much volatile in last 45 days is that FIs have withdrawn so much money, and every news channel is basically telling you that they have withdrawn some 15-16 billion dollar. मतलब वो इसका मतलब निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है. 15-16 बिलियन है, डॉलर है तो कितना रुपये निकल गया, बट बहुत बड़ी फिगर है, ये समझ में आती है. इसका कंटेक्स्ट देने के लिए समटाइम्स पीपल गिव एग्जांपल ऑफ 2008. जस्ट टू गिव यू अनदर कंटेक्स्ट, इन 2008 FIs have withdrawn some $15 billion, $15.5 billion. अभी आप देखो पिछले 45 दिन में भी उन्होंने $15.5 billion अप्रॉक्सीमेटली इंडिया से निकाला. तो 2-3 चीज़ें निकल के आती है कि भाई इतना पैसा क्यों निकाल रहे हैं. एंड ऑब्वियसली पीपल कंसीडर FIs टू बी वेरी स्मार्ट पीपल, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, तो स्मार्ट लोग हैं, तो इनको ऐसा क्या दिख रहा है. फिर एक और चीज़ सोचते हैं कि जब पिछली बार 2008 में $15 billion निकाला था तो मार्केट्स वर डाउन बाय 60%, अभी तो मार्केट 10% ही गिरी है, तो क्या इसका मतलब है कि 50% और गिरने वाली. ये सारे सवाल दिमाग में आते हैं, बहुत ही वैलिड क्वेश्चंस हैं. बट मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ. देखिए, जब पिछली बार FIs ने $15 बिलियन निकाला था 2008 में, उस समय हमारे देश की जो पूरी स्टॉक मार्केट है उसकी टोटल वैल्यू, जिसको टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, ऑल दी कंपनीज पुट टुगेदर थी $1 ट्रिलियन या $1000 बिलियन. अब उसमें से उन्होंने $15 बिलियन निकाल दिया, यानी कि 1.5% हमारी मार्केट कैप का निकाल दिया. टुडे व्हेन दे हैव विथड्रॉन $15 बिलियन, हमारी टोटल मार्केट कैप भी 5.5x हो चुकी है. सो आज की डेट में हमारी टोटल मार्केट कैप है $5.5 ट्रिलियन. उसमें से उन्होंने $15 बिलियन निकाल लिया, विच इज लाइक 0.3%. इनफैक्ट आज की डेट में जो FIs का टोटल इन्वेस्टमेंट है इंडिया में एज ऑन 30 सितंबर, बिकॉज आपने बोला 1 अक्टूबर बाद से, एज ऑन 30 सितंबर FIs ने तकरीबन $1 ट्रिलियन इंडिया में निवेश किया हुआ था. और हम कहते हैं 2008 में तो हमारी टोटल मार्केट कैप ही $1 ट्रिलियन की. तो अब $1 ट्रिलियन में से उन्होंने $15 बिलियन निकाल लिया, यानी कि अपनी खुद की मार्केट कैप जो उनकी है यहाँ पे, उसमें से भी 1.5% निकाला. तो मुद्दे की बात यह है, इट इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट इन दिस कंटेक्स्ट. हमको बड़ा लगता है अमाउंट, ये बड़ा इतना बड़ा अमाउंट अब बचा ही नहीं है, क्योंकि हमारी मार्केट कैप भी 5.5x हो चुकी है. एंड FIs के कंटेक्स्ट में तो ये कुछ अमाउंट है ही नहीं. अब बात आता है भाई ये निकाल क्यों रहे हैं. जैसे काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट मिलते हैं कि पीपल आर रिडीमिंग मनी फ्रॉम इंडिया बिकॉज दे आर फाइंडिंग इट वेरी एक्सपेंसिव एंड मूविंग टू कंट्रीज लाइक चाइना बिकॉज इट इज़ वेरी चीप. बट आपको एक और डेटा मैं बताता हूँ. इस पूरे पीरियड में, लेट्स से टेक एग्जांपल ऑफ अक्टूबर, जब इतना बड़ा आउटफ्लो हुआ, मोस्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स ने नेगेटिव आउटफ्लो देखा बाय FIs. बारिंग 1 or 2 इमर्जिंग मार्केट, मोस्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट से FIs ने पैसा निकाला. इनफैक्ट चाइना से भी पैसा निकाला. तो ये आर्ग्यूमेंट तो वैलिड ही नहीं है.
कि भाई इंडिया महंगा हो गया है इसलिए निकाल के चाइना में डाल रहे हैं। तो गया कहाँ है पैसा? गया है पैसा यूएसए में। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा हम लोग सोचते हैं कि FIIs जो है ना वो कोई एक सिंगल एंटिटी है, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। FIIs भी मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं बट मल्टीपल है। उन सबकी ऑब्जेक्टिव भी, जैसे सिद्धार्थ आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, कई इन्वेस्टर्स हैं, कई ट्रेडर्स हैं, कोई स्टॉक में डालते हैं, कोई म्यूचुअल फंड में डालते हैं। इसी तरह से कई FIIs स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई अगले 10-15 साल के लिए उन्होंने कुछ एलोकेशन कर दी इमर्जिंग मार्केट में, विद इन दैट इंडिया में। कुछ FIIs क्या करते हैं, टेक्निकल कॉल लेते हैं जिनको हेज फंड बोलते हैं। अब अगर आप एक हेज फंड हो तो आपको ना पूरे साल में 2-3 ही मौके मिलते हैं एक बड़ी कॉल लेके ट्रेडिंग करने। तो आज की डेट में उनको क्या बड़ा मौका मिल गया? यूएस इलेक्शन। उससे बड़ा क्या इवेंट हो सकता है? यूएस जो है 50-60% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैप है, वहाँ पे इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आप एक कॉल ले सकते हो, मतलब कि भाई बिटकॉइन के साथ क्या होगा, आप एक कॉल टेस्ला के साथ होगा, ट्रंप नहीं आए तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वो क्या करते हैं, जहाँ पे उन्होंने टेक्निकल कॉल ले रखी थी, लेट्स से इंडिया में ले रखी थी, चाइना में, वहाँ से थोड़ा पैसा निकालते हैं, थोड़ा, और मूव कर देते हैं यूएसए में, कल को वापस मूव कर देंगे चाइना में या इंडिया में। अब ये जो थोड़ा अमाउंट है वो होता है इतना बड़ा है कि हमको बहुत बड़ा लगता है, बट वो इतना बड़ा है नहीं। बट हमको क्या अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतना पैसा निकलने के बाद भी, जब आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले इस तरह के कुछ पैसा निकलता था तो मार्केट 30-40% डाउन होती थी, बट थैंक्स टू द फैक्ट दैट रिटेल इन्वेस्टर्स आर गेटिंग मैच्योर्ड एवरी डे। लोग बोलते थे कि कोविड के बाद इन्वेस्टर्स ने आना शुरू किया है, बहुत यंग इन्वेस्टर्स हैं, उनमें इतनी समझ नहीं है और जब वो मार्केट में करेक्शन देखेंगे तो निकल जाएंगे। बट आपको पता है अक्टूबर महीने का भी हमारे पास डेटा आ चुका है एमफी की साइड पे। अक्टूबर मंथ ने वन ऑफ द हाईएस्ट इनफ्लो देखा है म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में, नेट। तो वो तो नहीं घबराए, क्योंकि शायद हम जब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई ये नए बच्चे आ रहे हैं, इनको तो कुछ समझ नहीं है, घबरा जाएंगे पहला 15% करेक्शन देख के, हम शायद अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को। ये अलग लोग हैं, इनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमसे बहुत अलग है। तो और एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है करेक्शन नहीं आए 2020 के बाद। आपको याद होगा जून 2022 में ऑलमोस्ट मार्केट अपने पीक से 15% डाउन हो चुकी थी, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी। 59,000 से गिर के 52,000 पर पहुंच गई। उसके अलावा आप देखिए अभी भी रिसेंटली मार्च 2014 में भी और 24 में भी, तब भी मार्केट में स्मॉल एंड मिड कैप में करेक्शन आया जब सेबी ने काफी सारे मेजर्स लिए, व्हिच आर गुड मेजर्स। बट ये मार्च 2023 में भी इस तरह का करेक्शन देखने को मिला था, दिसंबर से लेके मार्च तक। तो ऐसा नहीं है कि करेक्शन आया ही नहीं। हाँ, 30% करेक्शन नहीं आया, 40 नहीं आया, ये हम आर्ग्यू कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब हम इतना सारा डेटा पढ़ते हैं, न्यूज़ पे देखते हैं, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। एब्सोल्यूट नंबर से ज़्यादा फोकस करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम परसेंटेजेस पे फोकस करें, हमारा साइज बढ़ रहा है। लास्टली देखिए, हमारे मान ली हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम कि हम आने वाले कुछ सालों में इंडिया नॉमिनल जीडीपी टर्म में 11-12% ग्रो कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम दैट। हमसे तेज़ी से ग्रो करने वाले भी नेशंस हैं, ऐसा नहीं कि हम ही ग्रो कर रहे हैं, छोटे नहीं। लेकिन इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री जहाँ पे आप साइज कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट। कि अगर आप एक FII हो, आपको अगर $1 ट्रिलियन डालना है किसी कंट्री में, इंडिया में तो डाल सकते हो। एक कंट्री जिसकी टोटल मार्केट कैप ही $100 बिलियन है, अब उसमें आप $10 बिलियन डाल के करोगे क्या? क्योंकि ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग में वो डेसिमल पॉइंट के 5वें डिजिट पे आता है आपके लोकेशन में। तो इंडिया इज ग्रोइंग एंड इंडिया इज ग्रोइंग विद साइज, ये अपने को ध्यान रखना है। एंड दिस इज द ओनली कंट्री जहाँ पे आप बड़ा पैसा डाल के पैसा बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, आई थिंक मनोज ने जो ये आंसर दिया है कि ये जो एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन्स जो इतना लोगों के अंदर जो आ रहा है, ये सोच के कि मार्केट्स अब इम्प्रूव नहीं करेंगे या मार्केट्स बेटर कब होंगे, ये इतना टाइम लग गया अभी तक, इतना ऐसा क्या हो गया कि मार्केट्स इम्प्रोवाइज नहीं हो पाए। सो मनोज ने जो जिस तरीके से आंसर दिया कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है आफ्टर कोविड जहाँ पे करेक्शंस नहीं देखे गए। जब इन्होंने जो बात करी कि जब सेबी ने मिड एंड स्मॉल कैप को लेके स्ट्रेस टेस्टिंग की बात करी थी, या फिर जब यूक्रेन रशिया वॉर आया, those have also been a very clear examples where the markets have actually corrected and the markets have rebounded after that. Therefore, just being anxious and becoming impatient that Indian markets will not do well is a wrong thing. How clearly he has told about, and since he has a lot of insights, he has gone through a lot of reports, he also talks about the same thing, that scalability
and the market size of India vis-a-vis other emerging economies is way too high. And this is one of the most important reasons because of which, despite other markets also growing at the better rate or same rate as that of India, we are still one amongst the winners. And because of which, today the Indian market investors are growing at this rate. So Manoj, I'm so happy that आज आपने इन्वेस्टर्स को ये बताया, और मैं इसके साथ एक और डेटा भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप अप्रिशिएट करेंगे। आई थिंक एक हफ्ते पहले सेबी का डेटा आया है कि आज एसआईपी बुक जो है इंडिया की, दैट हैज बीन वन ऑफ द हाईएस्ट 25,000 per month crores per month. तो मुझे लगता है कि अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इतना पैसा पंप करेंगे हर महीने, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में, अगर मैं आपके हिसाब से बोलूं तो जिस तरीके से 2008 में थी विज़ आज जो 2024 में हम मूव कर रहे हैं, वो तो ऑलमोस्ट नल एंड वाइड हो जाएगी, या बहुत इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी आज से 4 से 5 साल बाद. सो आई मीन जस्ट बीइंग एंशियस and having a very, very strong confidence over this resilient Indian economy is, I think, the prime factor because of which you think that the Indian investors will actually make money. तो मैं आपको डेटा, जो आपने डेटा पॉइंट बताया, इसको एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ. आज से अगर 10 साल पहले की बात करें तो जो हमारी टोटल मार्केट कैप है इंडिया की, लेट्स से 100 रुपये की मार्केट कैप है, उसमें तकरीब 50-55% तो प्रमोटर के पास ही होल्डिंग होती है, और तकरीबन 22% होल्डिंग थी FIIs के पास. और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, ये भी रिटेल इन्वेस्टर इनके थ्रू पैसे निवेश करते हैं, तो DIIs की होल्डिंग खाली 10% के आसपास थी. एज वी स्पीक राइट नाउ, ओवर द लास्ट 10 ईयर्स हुआ क्या है, जो आपने ये फिगर्स बताई कि DIIs का पार्टिसिपेशन, रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है. टुडे एज वी स्पीक FIIs की होल्डिंग भी तकरीबन 17-18% है, और DIIs की होल्डिंग भी 17-18% है. 10 years back they were like 22.5, we were like 10.5, so there was a huge gap, वो डबल थे हमसे 12% से भी ऊपर. तो अब क्या हो गया, हम दोनों के दोनों 18%, 17-18% पे आ गए. तो अभी आपका बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है कि अब DIIs का इम्पैक्ट और FIIs का इम्पैक्ट कम हो गया, और DIIs का कंपैरेटिव इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है. हाँ, लेकिन FIIs आज भी एक मटेरियली इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इंडियन इक्विटी मार्केट में, बिकॉज अभी भी 17.5% तो है ही ना, और ये 17.5% फ्लोटिंग मार्केट कैप का है. कहने का मतलब क्या है, जो ट्रेडिंग होती है. अब देखिए 50% अगर प्रमोटर के पास है, वो तो डेली ट्रेडिंग करता नहीं है, तो रिमेनिंग जो 50 बच गया, उसमें से अगर 18% FIIs का है जिसमें ट्रेडिंग होती है, बाइंग सेलिंग होती है, तो वही इम्पैक्ट करता है मार्केट में. आज का रेट कहाँ बंद होगा. तो अब DIIs एंड FIIs हैंड ऑन हैंड चल रहे हैं, तो DIIs की डोमिनेंस बढ़ी है, ये फैक्ट है. FIIs की थोड़ी कम हो गई है. इसका मतलब यही है कि अब बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी देखने की प्रोबेबिलिटी कम हो. बट वॉलेटिलिटी तो आएगी, जैसे अभी इन्होंने $15 बिलियन निकाल दिए, अगर इतने छोटे टाइम में इतना बड़ा पैसा निकलेगा तो इट विल हैव इम्पैक्ट. बट ऐसी कोई करेक्शन नहीं है जो कि रिकवर नहीं हुई है, और इंडिया में ग्रोथ की इतनी अपॉर्चुनिटी है. सिद्धार्थ, देखिए जैसे आज की डेट में AC की पेनिट्रेशन हमारे देश में बहुत कम है, खाली 6% के आसपास हाउस होल्ड के पास AC है. मैं आपको कुछ नंबर बताता हूँ. द लार्जेस्ट AC मेकर इन इंडिया इज नॉट अ लार्ज कैप कंपनी इन इंडिया. The largest apparel company, the largest hotel chain, okay, the largest tire maker company is not a large cap company in India itself. My God. दूसरा, अब दूसरा क्या होता है, लार्ज कैप की डेफिनेशन क्या बोली है सेबी ने, कि टॉप 100 कंपनी को लार्ज कैप बोलते हैं. अगर हम यही डेफिनेशन वर्ल्ड की सारी कंपनी पे फिट कर दे कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी 100 बड़ी कंपनी कौन सी, जिनको वर्ल्ड की लार्ज कैप कंपनी बोल देते हैं, तो वर्ल्ड की जो लार्ज कैप कंपनी है उसमें इंडिया की खाली 3 ही कंपनी. इसका मतलब क्या है, जिन कंपनीज को हम लार्ज कैप बोलते हैं वो लार्ज कैप है ही नहीं ग्लोबल कंटेक्स्ट में. ग्लोबल इन्वेस्टर तो उनको स्मॉल एंड मिड कैप समझ के खरीदते हैं. तो पहले तो हमारी लार्ज कैप ही लार्ज कैप नहीं है, और लार्जेस्ट टायर मेकर, लार्जेस्ट AC मेकर हमारे कंट्री में भी लार्ज कैप नहीं है. तो सोचो कितना ग्रोथ पोटेंशियल अभी बाकी है. और हम सोचते हैं कि चलो इन्फोसिस इतना बढ़ गया, फॉर एग्जांपल एक स्टॉक का एग्जांपल हाइपोथेटिकली ले लेते हैं, या कोई भी मारुति इतना बढ़ गया है तो कितना बढ़ेगा. अभी दीज आर हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बट ये ग्लोबल कंटेक्स्ट में ये तो अभी लार्ज कैप कंपनियां भी नहीं है. वेरी ट्रू. ये बिल्कुल पते की बात आपने बोली कि अभी भी पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा रह गया है, चाहे वो टायर्स में हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्यों ना हो. आई मीन देयर इज immense potential in an emerging economy, especially like a country like India, to grow. And you know, मैंने इनफैक्ट आज सुबह ही पढ़ रहा था कि CLSA की एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो बहुत क्लियरली ये बोलते हैं, उन्होंने बोला था
कि जो 1 अक्टूबर से जो पैसा निकला है वो चाइना जो स्वीप आउट हो रहा था, फाइनली आज वो यूएस जा रहा है जी, बिकॉज ऑफ ट्रम्प इकोनॉमिक्स। और जैसे जैसे ये ट्रम्प इकोनॉमिक्स सेटल होता जाएगा, वी विल बी सीइंग कि ये पैसा वापस इंडिया में आ जाएगा, बिकॉज जो दोनों इकोनॉमीज जो है इंडिया एंड यूएस, वो मोर और लेस काफ़ी ओपन इकोनॉमी है, उनके डेटास काफ़ी पब्लिक में हैं, लोग उन डेटास को समझते हैं, एंड आई थिंक दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक एंजाइटी, ये स्ट्रेस है, ये बहुत टेम्पररी फेज है, और इन्वेस्टर्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो मार्केट्स का एक रुझान है, जहाँ पे वो ऊपर भी जाती है, जहाँ पे वो नीचे भी जाती है। शायद अगर नीचे नहीं जाएगी तो शायद पैसा ही नहीं बन पाएगा। मार्केट्स इतनी एक्सपेंसिव हो जाएंगी कि वहाँ वो रिटर्न जनरेट करना फ्यूचर में मुश्किल होगा। इसको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। वी नो दैट बाय ऑन डिप्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी। जो काफी टैक्टिकल और स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी काफी यूनिट्स खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में तो मार्केट्स बढ़ी जाएंगी। व्हाट इज योर टेक ओवर एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर कि इस समय अगर हमें कुछ खरीदना है या इस समय अगर हमें इन्वेस्ट करना है इंडियन इन्वेस्टर्स को, सो वेयर शुड दे इन्वेस्ट so that their money should grow also? The volatility should not be that much, and at the same time they should be comfortable. Yes, जिस चीज के लिए वो पैसा जमा कर रहे थे for next 30 years या 40 years, वो grow भी हो रहा है and their goals are accomplished. So what do you think, Manoj, should be the right answer? I think right या wrong तो एक बहुत ही एक subjective word है, but I still want to hear from you that where should the investors go and invest their money? देखिए, दो बातें हैं। हिस्टोरिकली जब भी एफआईज ने पैसा निकाला है, अब वो दो रीज़न से निकलते हैं। या तो कोई इंडिया सेंट्रिक प्रॉब्लम, जैसे डिमोनेटाइजेशन थी, या एनबीएफसी क्राइसिस था 2018 में, वो इंडिया सेंट्रिक प्रॉब्लम थी। फिर कई बार ऐसे पैसे निकाले जाते हैं जो कि नॉन इंडिया सेंट्रिक प्रॉब्लम थी, जैसे फॉर एग्जांपल 2011 में यूएस क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हुई, या 2015 में युआन डिवैल्यूएशन हुआ। तो दीज आर नॉट इंडिया सेंट्रिक प्रॉब्लम। अगर आप अभी भी देखोगे, इंडिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, कोई भी नंबर आप उठा के देखो, सब इंटैक्ट है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, सारी चीज। तो इट इज नॉट इंडिया। जब एफआईज ने नॉन इंडिया सेंट्रिक प्रॉब्लम से बड़ा पैसा निकाला है, दैट हैज लेड टू सम करेक्शन इन द मार्केट। ऑलवेज इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू टॉप अप योर इन्वेस्टमेंट टू बिगिन विद। तो यस, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट टुडे पीपल शुड डू टॉप अप। अब कहाँ टॉप अप करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, इंपॉर्टेंटली देखो, मैं ऐसा स्ट्रांगली मानता हूँ कि अगर आप स्टॉक पिकिंग करते हैं तो वहाँ पे बाय ऑन डिप may not always be the best strategy, क्योंकि you end up buying what is called falling knife, है ना। तो ऐसे में ना, लेकिन जब आप एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, इट कैन बी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, मल्टी कैप कैटेगरी, मिड कैप ऑल्सो, वट एवर कैटेगरी विच इज डाइवर्सिफाइड अक्रॉस सेक्टर, वहाँ पे आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आप एक SIP चला रहे हो, मान लीजिए, और 10,000 रुपये की SIP चला रहे हो, हर महीने घटते हैं, एक 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा चेक आप दे सकते हैं इस डिप पे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 5 दिन में मार्केट और 2% नहीं गिर सकती। इसका मतलब यही है कि अपने को पता नहीं है, बट दीज आर ऑल्सो गुड लेवल्स। लास्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे हमको पता है 23 मार्च 2020 को मार्केट पे बॉटम बनाया कोविड के टाइम पे, 28,000 का सेंसेक्स, हाँ ऐसा कुछ लेवल पहुँच गया। मुझे निफ्टी याद है, निफ्टी ऑलमोस्ट 7,500 लेवल ऐसा कुछ पहुँच गया था। तो अगर बेस्ट होता अगर मैं 23 मार्च 2020 को इन साइड आई नो पैसा डाल देता, बट अगर मैंने 16, 17, 18 मार्च 2020 को भी पैसा डाल दिया होता, जब मार्केट 20% गिर चुकी थी, 38% गिरी थी मार्केट 23 मार्च आते आते, वहां से भी मेरा बहुत अच्छा पैसा बना है। करेक्ट। तो लेकिन अपने को पता नहीं है, जैसे 23 मार्च 2020 को भी लोग कह रहे थे कि निफ्टी 6,000 जा सकती है। करेक्ट। तो इफ यू कीप ऑन वेटिंग फॉर 6,000, वो कभी आया ही नहीं, आपने पूरा मौका गवा दिया, तो 10 साल में एक बार आया। तो क्या होता है, अगर आपको लेवल्स अच्छे मिल गए, आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटर है, यू शुड डू वन टॉप अप। अब उससे बेटर अगर लेवल मिलते हैं ओवर द नेक्स्ट 1 month, you should do one more top up, but these are good level to top up in your existing mutual fund scheme। आप जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टेड हो, उसी में टॉप अप करो। वेरी गुड। टॉपिंग अप योर एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम, बाइंग ऑन डिप्स, आई थिंक यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बज़वर्ड है जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। मनोज, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी भी एक इमर्ज हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक हाइब्रिड कैटेगरी, और हाइब्रिड कैटेगरी में भी काफ़ी सारे फंड्स होते हैं। तो काफ़ी व्यूअर्स और काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं
दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि हम अगर हाइब्रिड कैटेगरी में अगर हम कोई फंड इन्वेस्ट करें तो व्हाट शुड बी द राइट कैटेगरी सो दैट they should have exposure of different asset classes, whether it is gold, whether it is silver, whether it is tungsten, whether it is debt, whether it is equity, blah blah. अब तो आप जैसे प्रोडक्ट डिजाइनर्स इतने ज्यादा कंपोनेंट्स या एसेट क्लासेस ले आए हैं कि मुझे लगता नहीं है कल को इनफैक्ट अब तो रियल एस्टेट भी इन द फॉर्म ऑफ REITs is also a part of it. So for those investors who want to diversify across different asset classes, what is your suggestion over? आई थिंक उसके लिए बहुत अच्छी कैटेगरी सेबी ने इंट्रोड्यूस करी है, वो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड. एंड जैसे आपने बोला कि अभी तो रीट्स वगैरह, रीट्स इनवेट्स जिसमें हम बोलते हैं, वो भी आ जाते हैं. तो क्या काम सेबी की इस कैटेगरी में सेबी ने क्या गाइडलाइन दी है सभी म्यूचुअल फंड्स को कि इफ़ यू आर लॉन्चिंग ए स्कीम कॉल्ड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, मिनिमम 10% हैज़ टू बी इन 3 डिफरेंट एसेट क्लासेस. तो यूजुअली वो 3 एसेट क्लास होती है, इक्विटी, डेट एंड गोल्ड. करेक्ट. मतलब गोल्ड रखते हैं आप, कमोडिटी होता है, सिल्वर भी रख सकते हो आप. And 0 to 10% can be REIT, which is real estate. Within equity, whenever permissible by RBI, currently it is not permissible to incrementally invest in foreign equity, but जब भी वो लिमिट खुलती है तो आप एक फॉरेन इक्विटी में भी डाल सकते हो. जैसे आप यूएस इक्विटी में थोड़ा पैसा डाल सकते हो, उससे आपको डॉलर का एक्सपोजर मिलता है. गोल्ड के थ्रू भी आपको डॉलर का एक्सपोजर मिलता है. तो उससे क्या होता है, आपका रिस्क ना सिर्फ डाइवर्सिफाई हो रहा है, अलग अलग एसेट क्लासेस में हो रहा है. जैसे हम जानते हैं गोल्ड एंड इक्विटी हैज नेगेटिव कोरिलेशन. करेक्ट. तो 2020 का एग्जांपल लेते हैं, लास्ट 1 ईयर रिटर्न इक्विटी का -29% था, मतलब 22% था माइनस, और गोल्ड का +29% था. करेक्ट. तो अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होता तो आप काफ़ी ड्रॉडाउन बचा सकते हो, मतलब डाउन साइड बचा सकते थे. फिर कई प्रॉब्लम होती है जो इंडिया सेंट्रिक प्रॉब्लम होती है, जैसे डीमोनेटाइजेशन एक इशू था, उसका यूएस से कुछ लेना देना नहीं है. तो इफ़ यू हैव सम डॉलर एसेट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड इन द फॉर्म ऑफ यूएस इक्विटी, तो वो इम्यून हो जाता है कुछ हद तक. इनफैक्ट रुपी डेप्रिसिएशन से आपको फायदा मिलता है. तो आई थिंक दिस वन कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा और बहुत ही टैक्स एफिशिएंट हो गया अभी तो. करेक्ट. कि यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स विच इज ओनली 12.5% वर्सेस अगर आप खुद लेट्स से डेट एक्सपोजर लेते हो तो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है, तो अगर आप 30% टैक्स देना पड़ता है अगर आप हाई टैक्स. आई थिंक दिस इज वन कैटेगरी जो इन्वेस्टर्स कंसिडर कर सकते हैं. So to all the viewers, to all the investors, I think the way Manoj has explained about what multi-asset as a category is, you can invest into different categories, asset classes, whether it is gold, whether it is silver, whether it is equity, whether it is debt, or more importantly, whether even it is international funds or international exposure, you can take through multi-asset category. Because this is a category which takes care of your volatility. As Manoj has very clearly said that gold and equity has a negative correlation. So let's say for example, अगर आपको अपना डाउनसाइड प्रोटेक्ट करना है तो गोल्ड अगर एक्सपोजर होगा आपके पोर्टफोलियो के अंदर, तो आपका जो एक पोर्टफोलियो में जो वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाएगी. उससे ये होगा कि इसके साथ आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहेगा जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. और मेरे ख्याल से जिस तरीके से आप बता रहे हैं फर्स्ट टाइम व्यूअर्स के लिए या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए भी, मुझे लगता है मल्टी एसेट एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, क्योंकि कुछ नहीं हो तो एटलीस्ट उनका कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रहेगा, वो अपने एफडी से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और टैक्स एफिशिएंसी जो है वो बरकरार है. तो Manoj, a very important question which I would want that through this platform, through this interaction what we are having, all the first time investors, एक्चुअली मेच्योर्ड इन्वेस्टर्स को तो उन्होंने तो 2008 क्राइसिस भी देख ली, उन्होंने तो .com क्राइसिस भी देखी, तो उनके लिए तो काफ़ी इजी होता है न्यूज़ में आने. लेकिन फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टर्स हु डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली अ मार्केट फॉल इज, व्हाट इज अ 10% फॉल. अगर कोई इंसान या कोई इंडिविजुअल 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है जिसमें से 10% इरोड हो, उसका कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा. डेफिनेटली. सो हाउ डू यू थिंक द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स शुड बिहेव and act so that his confidence is intact in the market? आपको क्या लगता है? So I think clearly for those investors who want to invest lump sum money, obviously first time investor they can always start with SIP, which is one of the best way. करेक्शन भी आती है तो एवरेज आउट होना शुरू हो जाएगा, तो दे गेट अ टेस्ट ऑफ इट एंड अकॉर्डिंगली वो अपना SIP का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, लम सम इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट अगर वो लम सम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पहली बार में, तो आई थिंक हाइब्रिड कैटेगरीज के प्रोडक्ट, तो अभी हम वी वर डिस्कसिंग ऑन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इटसेल्फ, इट कैन बी बैलेंस एडवांटेज फंड ऑल्सो, बट लेट्स स्टिक टू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड. तो जैसे अब हम जब डिज़ाइन करते हैं हाइब्रिड, तो हाइब्रिड फंड में हम ऐसा सोचते हैं कि कौन इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट कर रहा है. ये वो इन्वेस्टर जिसको
इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इक्विटी की वॉलेटिलिटी उसको थोड़ा ज़्यादा लगती है। फिर ये इन्वेस्टर फिर डेट में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा, क्योंकि डेट तो बहुत स्टेबल है, क्योंकि शायद डेट वॉलेटाइल तो नहीं है, बट इतना वॉलेटाइल तो नहीं, बट रिटर्न बहुत अच्छे नहीं बनाता, बहुत मॉडरेट रिटर्न बनता है। तो वी आर डीलिंग विद एन इन्वेस्टर जिसको इक्विटी जितनी वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बट रिटर्न भी रीजनेबल चाहिए और डेफिनेटली टैक्स एफिशिएंट रिटर्न चाहिए। एवरीबॉडी लाइक्स टैक्स एफिशिएंसी, सो वहाँ पे ये मल्टी एसेट कैटेगरी फिट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा इक्विटी में भी डालते हैं, गोल्ड में भी डालते हैं। देखो, इक्विटी और गोल्ड दोनों ही ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ असेट। एवरी 10% मार्केट करेक्शन ना आपको मौका मिलता है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का। वन ऑफ माई फ्रेंड वाज टेलिंग मी कि हर 5% मार्केट करेक्शन पे ना जो कॉन्फिडेंस होता है वो 10% गिर जाता है, करेज 10% गिर जाती है और लर्निंग 10% बढ़ जाती है। तो आफ्टर 45-50% करेक्शन ना आपका करेज जीरो हो जाता है और आपके पास 100% नॉलेज होती है। तो आई थिंक वन ऑफ द वे टू डील विद दिस सिनेरियो इज कि आप मल्टी एसेट से शुरुआत कीजिए और जैसे जैसे आप ग्रेजुएट होते हो इस मार्केट में आप थोड़ा रिस्क बढ़ा सकते हो। So, viewers or investors, or in fact, I should say the first time investors, I hope we have understood today from an expert's point of view that how important it is for the first time investors to invest their money through multi-asset category, where you get a combination or you get a bouquet or you get a kitty of gold, you get a kitty of silver. What Manoj has rightly said, you even get a kitty of arbitrage and debt, जहाँ आपकी स्टेबल इनकम आती है और उससे आपका जो कैपिटल की जो प्रोटेक्शन है वो काफी रहती है, आपका मनोबल, आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रहता है और एंजाइटी तो ऑफ कोर्स कम रहेगी क्योंकि आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा। तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को एक मल्टी एसेट कैटेगरी के थ्रू अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो देखेंगे कि उनका जो पैसा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक विद लेस वॉलेटिलिटी ग्रो होता है। बिकॉज जैसे मनोज ने कहा, गोल्ड भी डबल डिजिट रिटर्न की तरफ जाते हैं, इक्विटीज भी डबल डिजिट रिटर्न की तरफ जाते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और टैक्स एफिशिएंसी भी बेटर चाहिए इन्वेस्टर्स को। सो आई थिंक मल्टी एसेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बो वेयर द फ्रेश इन्वेस्टर्स और द newly coming investors can see their money. Manoj, I have a very, very important question, taking me to a different level altogether, and this question has more to do with India. Manoj, tell me one thing. What has happened within the Indian investors कि उन्होंने आज one of the highest SIP books create कर ली? डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इन्फ्लुएंस आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के इन्फ्लुएंस से ज्यादा हो रहा है। लोग एफडी से मूव ऑन हो रहे हैं और लोग इक्विटीज की तरफ मूव हो रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो वर्ल्ड में टॉप 3 या टॉप 4 के अंदर जो आ रहा है। व्हाई डू यू थिंक ऐसा क्या है जो इंडियन इन्वेस्टर्स को हमें क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज ऑफ विच आज इंडियन बोर्सेस जिसको हम बोलते हैं सेंसेक्स बोलते हैं या निफ्टी बोलते हैं, आज वो इस तरीके से स्ट्रेंथन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इतने इतने जागरूक होते हैं। I think 2-3 things have worked over the last 5-10 years. Number one is all the awareness created by not only the regulator but the distributors, people like you creating a lot of content and via social media and media, other channels of media. तो awareness बहुत बढ़ गई है। सेबी की वो पूरी कैंपेन म्यूचुअल फंड सही है, इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए जितने भी एफर्ट्स करे हैं, बजट एलोकेट करे हैं, आप सब लोगों ने जो भी कंटेंट क्रिएट किया है, ऑल दो थिंग्स हैव हेल्प इन्वेस्टर, उनका थोड़ा अवेयरनेस भी बढ़ा, थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ा ये सब चीज़ें सीखने के लिए, और अभी उनके पास मीडियम भी है ये सब चीज़ें सीखने के लिए, पहले मीडियम की भी कमी थी। सेकेंड, दी होल टेक्नोलॉजी पार्ट कि टुडे कई बार क्या होता था, आपने कुछ सुना, आपको समझ में आया, आपको अच्छा भी लगा, बट उसका प्रोसेस इतना कम्बलसम होता है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो, कितने फॉर्म भरे, कितने साइन करे। टुडे इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, आई थिंक इट विल टेक 1 minute or 2 minutes वाया मोबाइल ऐप, देयर आर मोबाइल ऐप्स अवेलेबल, आप वहीं से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड वैसे भी बहुत ट्रांसपेरेंट था, वैसे भी बहुत लिक्विड था, बट अभी इन्वेस्ट करना, रिडीम करना बहुत ईजी हो गया है। आई थिंक दीज फैक्टर्स आर द की ड्राइवर कि लोगों की इतनी अवेयरनेस बढ़ी है और कन्वीनियंस बढ़ गया है इन्वेस्ट करने का। वाओ, कन्वीनियंस थ्रू टेक्नोलॉजी, और जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैज एक्चुअली हेल्प्ड अ लॉट फॉर द व्यूअर्स, फॉर द इन्वेस्टर्स टू गेन नॉलेज, टू गेन कॉन्फिडेंस, and most importantly to invest their money and letting it grow over a period of time.
So probably, if I could sum up this answer, I would say that investors, the technology has played a very crucial role. The web portals, the apps, जिसने convenient कर दिया है आज investors को कि with a single click आप जाइए, लॉग इन कीजिए, अपना पैन और अपनी KYC करवाइए और आप 10-15 मिनट बाद ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक उससे और रिडेम्पशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। whenever you 100% लिक्विड है और इक्विटी में आपको T+1 डे में पैसा वापस आ जाता है, T+2 डेज में पैसा आ जाता है और डेट में शायद T+1 डे में आ जाता है। तो उस हिसाब से लिक्विड भी बहुत, कन्वीनियंट भी बहुत जी। तो मेरे ख्याल से ये तो सोने में सुहागा हो गया कि आपने सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स गिनवा दिए जिसके कारण ये एसेट क्लास इतनी अट्रैक्टिव हो गई और इसका मार्केट फिट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज इंडियन बोर्सेज टॉप 3 या टॉप 4 के अंदर ऑलरेडी लिस्ट हो गए वर्ल्ड में। सो वाओ। सो मनोज, एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर, एज अ प्रोडक्ट डेवलपर, this would be our last question, and I would want you to honestly from your heart to answer this question. What are the things which you really think about कि किन किन चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं कि उनकी कि प्रोडक्ट इस तरीके से बनाए या एक ऐसा म्यूचुअल फंड बनाए जो इन्वेस्टर्स जिससे इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़े जी। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? हाउ वुड यू लाइक टू आंसर? हमारे जो दर्शक हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं मुझसे ये पूछने में कि ये जो म्यूचुअल फंड्स डेवलप होते हैं, क्या फंड मैनेजर्स हमारे बारे में वाकई में बहुत सोचते हैं, मार्केट फिट को देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी को देखते हैं, क्या देखते हैं जिसके कारण वो फंड्स एक्यूमुलेट करते हैं, अपना NFO पीरियड रन करते हैं, उसमें हजारों करोड़ों रुपए जनरेट करते हैं और एक लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी लेकर आते हैं कि हाँ, हम आपका पैसा बढ़ा कर दे सकते हैं। देखिए 3-4 चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। आई विल टेक मे बी 5 मिनट टू एक्सप्लेन प्लीज। तो अब जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अलग अलग निवेशक हैं, उनकी नीड ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। 2 people with same age, same background, same income level can have different risk appetite, ठीक है। तो बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि ऑब्वियसली कई लोगों का इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल है, किसी का 5 साल है, किसी को -10 देख के खुशी होती है कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू टॉप अप, किसी को -10 देख के लगता है कि लेट्स रिडीम एवरीथिंग एंड गो बैक टू एवरीथिंग। तो सबका रिस्क एपेटाइट अलग है, सबका रिस्क तो बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस, है ना, बहुत पर्सनल। तो ऐसे में हम भी क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट की जो फिटमेंट है अलग अलग इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख के बनाते हैं। जब हम कोई इक्विटी फंड बना रहे हैं तो वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हमको मार्केट से बेटर रिटर्न देना है। लेट्स से इफ द बेंचमार्क इज निफ्टी 50 डिलीवरिंग 12% रिटर्न, हमारी कोशिशें होती हैं कि हम उससे खर्चा वर्चा काट के भी इन्वेस्टर के हाथ में कैसे हम 13, 14, 15 पहुँचाने की कोशिशें करें। वहाँ पे वॉलेटिलिटी के ऊपर इतना हमारा ध्यान नहीं होता क्योंकि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो तो आएगा। अब जब हम हाइब्रिड प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि क्या व्हाट लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी वी आर कंफर्टेबल विद इन आवर पोर्टफोलियो। तो हम एक नंबर ले लेते हैं कि भाई एनुअल वॉलेटिलिटी ऑफ 5% अपने को चलेगी, उससे ज़्यादा हमें वॉलेटिलिटी देनी। अब इस वॉलेटिलिटी को टारगेट करते हुए व्हाट बेस्ट आई कैन डू इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजिंग रिटर्न एंड ऑल्सो इन मोस्ट टैक्स एफिशिएंट मैनर। तो दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स मे नॉट जनरेट द हाइएस्ट पॉसिबल रिटर्न जो हाइब्रिड होते हैं, बट दे विल जनरेट अ वेरी गुड इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर समबडी जिसके लिए 12 ना आए 10% रिटर्न आ जाए बट -20 ना देखने को मिले। तो अब क्या है ना, हर प्रोडक्ट की डिपेंडिंग ऑन हम किस इन्वेस्टमेंट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं हमारे दिमाग में, हम उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। 3-4 थिंग्स: 1, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी; 2, व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न दिस प्रोडक्ट कैन जनरेट ओवर द लॉन्ग टर्म; 3, टैक्स एफिशिएंसी; एंड 4, वॉलेटिलिटी ऑफ द अल्फा। तो फॉर एग्जांपल इक्विटी में हम क्या चीज़ मैनेज करते हैं, वॉलेटिलिटी तो रहेगी मार्केट की, बट अल्फा की वॉलेटिलिटी, यानी कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट 12 दे रही है तो 15 दो, तो 3% एक्स्ट्रा को हम बोलते हैं अल्फा। अब लेकिन इसी साल हमारा 10% अल्फा है, इसी साल -10% अल्फा है, तो अगेन एक्सपीरियंस विल बी वेरी डिफरेंट, क्योंकि इन्वेस्टर ने देखा भाई इन्होंने पिछले साल 10% का अल्फा जनरेट किया तो दीज आर गुड पीपल, इनको पैसा दे दो। अगले साल हमने -10% का अल्फा दे दिया, तो दी एक्सपीरियंस विल बी वेरी बैड। लेकिन अगर हमारी अल्फा की वॉलेटिलिटी कम है कि 3% अल्फा रहता है लॉन्ग पीरियड में, कभी 2 आता है कभी 4 आता है,
तो यू कैन बी रीजनेबली श्योर कि भाई यहाँ पे पैसे डालो तो मार्केट बीटिंग रिटर्न बन जाते हैं। करेक्ट। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, फैक्टर डाइवर्सिफाइड बनाते हैं, जो कि बहुत टेक्निकल हो जाएगा, बट हम फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं कि भाई इंडेक्स में अगर PSU 12-13% है, हम भी 12-13% रखते हैं, बट विद इन PSU कौन से PSU खरीद रहे हैं। इंडेक्स में अगर वैल्यू स्टॉक 50% है, हम भी 50% रखते हैं, बट विद इन वैल्यू स्टॉक कौन से खरीद रहे हैं। करेक्ट। इससे क्या होता है, कोई भी टेलविंड या हेडविंड, ग्लोबल या लोकल, कोई भी मैक्रो इवेंट आपके पोर्टफोलियो की अल्फा को बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी नहीं दे सकती। करेक्ट। So I think these are the few things which goes behind when it comes to designing product, जो हम कोशिश करते हैं depending on क्या investor class हम target करते हैं। Wow. So, dear investors, this is the crux or the soul of today's podcast. We are directly hearing from the product designer कि इतनी high level of accountability और इतनी strong market fit कि वो मद्देनजर रखते हुए उनको जो एक प्रोडक्ट डिजाइन करना होता है उसमें वो क्या क्या टेक्निकल पैरामीटर्स देखते हैं। क्या वो फंड कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट कर सकता है, वो इंडेक्स के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है और कितना कंसिस्टेंट है उस रिटर्न को जनरेट करने में। और जैसे उन्होंने कहा कि जब मार्केट्स नीचे गिरती है या तो वो तो वॉलेटिलिटी तो आएगी नहीं आएगी, बट क्योंकि इनका फोकस ये है कि इन्वेस्टर्स का पैसा बने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो इससे बेटर एक अकाउंटेबिलिटी का जो मेजर है मुझे नहीं लगता कोई और है। और आई थिंक यही रीजन है कि आज जो एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रन हो रही है अंडर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर सेबी, और is with having the product designers like Manoj, who has 17 years of experience and he has seen lot and lot of market cycles जहाँ markets गिर भी रही हैं, जहाँ markets बढ़ भी रही हैं। So I mean this brings us to the conclusion of today's podcast that product designing itself is done with a high level of accountability, keeping into mind different geographies, keeping into mind different asset classes, keeping into mind different demography. So all of these features are really and really playing a very important role, a vital role for your portfolios to grow, and because of which you guys are investing seamlessly. So kudos to experts like Manoj who are creating such a big impact within the world of investments. And with this, we come to an end of today's podcast. Thank you so much, Manoj. Thank you, Siddharth, for to come inviting me. over to us. Thank you so much.